Good morning children. Today we were discussing about uniform circular motion. क्या क्या हमने देखा था बेटा? थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर. Theta is a angular displacement when motion in circle and s is the linear displacement. And velocity is equal to, अगर हम linear velocity बोले बेटा, linear velocity जो हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में देखा है, लीनियर वेलोसिटी इज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी. डेल्टा एस मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम इंटरवल. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाई ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई delta t. Theta is angular displacement. So change in angular displacement by change in time interval लेंगे तो क्या निकलेगा? Angular velocity. Now we'll see that here is the relationship between theta is angular displacement, s is linear displacement. So यहाँ पे इनके बीच में relation है. Can we find the relationship between v and omega means linear velocity and angular velocity? Yes, we can find the relationship between linear velocity and angular velocity that is given in your textbook as well. So write beta, first write omega. Omega is equal to delta theta by delta t. What is the value of theta? S by r. Put here delta s by r divide by delta t. S by r, s is the displacement and r is radius. Radius is constant, radius will not be changed. Take outside. So क्या बचा आपका? डेल्टा s by डेल्टा t. डेल्टा s by डेल्टा t क्या होता है बेटा? Just see here is v. So put here v. Here omega is equal to 1 by r into v. Take r this side, so omega r is equal to v. That is the relationship between linear velocity and angular velocity. So linear velocity is equal to angular velocity into radius. So हमारा क्या निकला वो भी ऊपर रख लो. Now we'll discuss about v is equal to r omega. इससे बेस जो न्यूमेरिकल्स हो गए आप उसको ट्राई कर सकते हो बेटा. Today we'll finish the lesson. We cannot extend the lesson. Tomorrow we'll start next lesson. Okay. V is equal to r omega. Now we will discuss about centripetal acceleration. That is our last topic, centripetal acceleration. First of all, what is centripetal acceleration? Centripetal acceleration क्या है बेटा? That is denoted by AC. इसको हम डिनोट करते हैं AC से. What is centripetal acceleration? Acceleration we have studied that change in velocity with respect to time is known as acceleration. What is centripetal acceleration? Let's see the figure. Object is moving in this circular path beta along with a circular path. That is angle theta, and it is a uniform circular motion. Uniform circular motion means what? Speed will be constant but direction will change. Speed is constant means what beta? Speed is constant means uniform circular motion, but direction is change here. Direction is continuously changing. Due to change in direction, velocity will change. Okay. Speed constant है means magnitude will be same for speed and velocity,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट आप बोल सकते हो, स्पीड एंड वेलोसिटी सेम होता है मैग्नीट्यूड में, बट वेलोसिटी हैज डायरेक्शन एज वेल. सो ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी मीन्स acceleration. So why it is known as centripetal acceleration? When the acceleration takes place due to the change in direction in velocity is known as centripetal acceleration. अब तक हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी जो हमने 9th में पढ़ा था उसमें क्या था, पहले 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही थी, फिर 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो एक्सीलरेशन कितना हुआ, तो v माइनस यू बाई टी करके निकालते थे. वहाँ पे मैग्नीट्यूड में चेंज होता है तो हम वहाँ पे एक्सीलरेशन और नेट एक्सीलरेशन निकालते हैं. सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मीन्स ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स द सेंटर along with रेडियस. कहीं पे भी रहेगा एक्सीलरेशन, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटा, उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो टूवर्ड्स द सेंटर होगा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल? सेंट्रीपिटल मीन्स होता है सेंटर सीकिंग, मीन्स सेंटर की तरफ. सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है बेटा, फोर्स जो सेंटर से लगता है, जैसे सोलर सिस्टम में लग रहा है, ओके. या अगर आप एक थ्रेड से अगर एक स्टोन बांध के घुमाओगे तो क्या होगा, वो कंटिन्यूसली सर्कल में मूव करेगा, क्योंकि आपने वहाँ पे जहाँ पे टाई किया है उसको हाथ में पकड़ा है, वहाँ पे आपने सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है आपके हाथ से, जिससे वो एक सर्कल में ही मूव कर रहे हैं. सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज एक्सीलरेशन ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अंडरस्टूड बेटा? नाउ विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. इसके लिए बहुत लॉन्ग मेथड दिया है बुक में, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज वी विल सी ए शॉर्टकट मेथड. कैसे हम बेटा शॉर्टकट तरीके से डिराइव कर सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर v इज इक्वल टू आर ओमेगा. v इज इक्वल टू, लेट्स स्टार्ट, v इज इक्वल टू बेटा आर ओमेगा. v क्या है? वेलोसिटी है, ओके. एंड इफ विल टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देन इट विल बी अ कांस्टेंट, दैट इज स्पीड. ड्यू टू द कांस्टेंट इन स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये मतलब एक तरह से वेलोसिटी हमारा स्पीड हो गया. अगर ये कांस्टेंट है बेटा, आर क्या है? रेडियस. रेडियस इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो ओमेगा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वो भी कांस्टेंट होगी. है समझ में? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ओमेगा का भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट एंड कांस्टेंट, सो ये वेरिएबल कहाँ से आएगा जब दो क्वांटिटीज कांस्टेंट है, ओके बेटा. सो क्या हो जाएगा, ओमेगा विल बी कांस्टेंट. आया समझ में? ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा बेटा. अब व्हाट यू हैव टू डू बेटा, जस्ट डिफ्रेंशिएट द बोथ टर्म. डिफ्रेंशिएट करो बेटा दोनों को. dv बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर ओमेगा बाई डी टी. ओमेगा आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लो, दैट इज डी आर बाई डी टी, हियर डी वी बाई डी टी. डी वी बाई डी टी मीन्स व्हाट बेटा, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन इज नोन एज एक्सीलरेशन. हियर इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सो टेक हियर ए सी. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी. चेंज इन वेलोसिटी बाई मीन्स डी वी बाई डी टी होता है एक्सीलरेशन, जो कि हमने पहले भी देखा है. डी वी बाई डी टी मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यू कैन से दैट यहाँ पे वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है और डिवाइड बाई टाइम में. अगर v की जगह पे हम s लेते हैं डी एस बाई डी टी, तो क्या होता, दैट इज वेलोसिटी, क्योंकि पोजीशन में चेंज. यहाँ पे r हमारा क्या है, रेडियस. r हमारा यहाँ पे एज ए पोजीशन वर्क कर रहा है आपका, सॉरी हियर ओमेगा बेटा.
ओमेगा इज कांस्टेंट, सो वी हैव टेकन आउटसाइड। हियर डी आर बाई डी टी, डी आर क्या है, आर आपका पोजीशन है बेटा यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, आर आपका यहाँ पे क्या है, एक तरह से पोजीशन है। सो डी आर बाई डी टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर ओमेगा डी आर बाई डी टी इज लाइक अ हियर change in displacement, r is a position or displacement here, so we can write here v. Okay, now put the value of omega. What is the value of omega? Make from here omega is equal to v by r, omega is equal to v by r, so AC is equal to v by r into v is equal to v square by r. ये आपका फॉर्मूला हो गया सेंट्रीपेटल के लिए। यू कैन चेंज एज वेल वन मोर फॉर्मूला हियर, डोंट चेंज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, चेंज द वैल्यू ऑफ वी। वी के प्लेस पे क्या सकते हैं, आर ओमेगा, आर इंटू ओमेगा, सो विल बी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, दैट इज ए सी। सो ये भी रहा आपका सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बेटा। आया समझ में? तो यही सब चीज़ों के बारे में बुक में बताया है बेटा, आप अच्छे से रीड करो, इस पे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करो। टुमारो हम डिस्कस करेंगे बेटा, एक टॉपिक हमारे बुक में दिया नहीं है बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई फॉरगॉट टू डिस्कस, दैट इज़ प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे कल। लेसन नंबर 1 जो है वो एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए हम उसको बाहर रखेंगे। 2, 3, 4 वी हैव फिनिश, ऐसा हम बोल सकते हैं। एंड व्हेन स्कूल विल बी रीओपन, इसका हम रिवीजन करेंगे, इस 3 लेसन्स का, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। ओके बेटा, डोंट बी कंफ्यूज, पेपर विल बी इजी। जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स है ड्यू टू द फिजिकल एजुकेशन नहीं चल रहा है, स्कूल चालू नहीं, तो उसके वजह से पेपर्स आपके ईजी रहेंगे। फ्रॉम मंडे विल स्टार्ट लेसन नंबर 5, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन, एंड वहाँ से हम वीडियो बंद करेंगे। आई नो दैट आप वीडियो ज़्यादा देखते भी नहीं हो। वी विल स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस और regular classes. Okay beta, so please do the numerical whatever possible you can. If you are facing, then inform me beta, call or message me. Tomorrow we'll discuss about scalar and vector का product कैसे निकालते हैं। Thank you my dear